Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Vidhi Kapoor, your trainer for financial reporting. And in today's video, I would be covering IAS 20 government grant. This is the part 2 of the video. And just in case you did not watch the part 1, the link for the same is available in the description box below. Go check that out. And if there is any of your friends who are appearing for FR in the upcoming attempt, please make sure to share this video as much as possible so that we are there to help you some support in the best possible way. So without any further ado, let's get started. Okay. So as I was talking about government grant, so that means if government is paying me any money to maybe construct a business, construct any of the asset, maybe buy an asset या किसी asset को use करने के लिए या फिर कोई particular area को promote करने के लिए, employment बढ़ाने के लिए, in any way, government wants you to do a particular part of the business wherein the government will provide you support in terms of monetary value or in terms of the assets. तो in that case, जैसे कल की क्लास में हमने solar panels का example भी discuss किया था, that the government is providing you support in all of these areas because government is better. So now in this case, we are going to recognize it as a grant. But कब recognize करते हैं? There are two conditions. First, there should be a reasonable assurance. रीजनेबल एश्योरेंस मतलब कि कंफर्म ही है कि मेरे पास बस पैसे आने वाले हैं, मैंने सारी कंडीशंस जो है मीट कर दी है गवर्नमेंट. एंड सेकेंडली, if I have received the grant, only in these two cases we are going to record the grant as what? How should I record it? Asset, liability, expenses, income. ग्रांट को हम लोग बिकॉज आई एम रिसीविंग द मनी इन हियर तो हम इसको एज एन इनकम रिकॉर्ड करते थे. करेक्ट. नाउ व्हेन आई एम सेइंग दैट आई विल रिकॉर्ड इट एज एन इनकम. अब एक बात बताओ, लेट्स से गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दिए कि आप 3 साल इस एसेट को यूज करोगे, तो आई एम पेइंग 20,000 फॉर द सेम टू यू फॉर दिस एसेट. अब गवर्नमेंट ने मुझे कितने टाइम के यूज करने के लिए बोला है? 3 साल के लिए. चाहे पैसे गवर्नमेंट ने मुझे अभी दे दिए, but if I record this 20,000 on day one itself, then it will be wrong recognition in the books. Can I say that will be early recognition of income in the books? अगर मैंने स्टार्टिंग में ही बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया अपनी इनकम, बट आई एम नॉट नेसेसरली लाइक, बट मेरे को गवर्नमेंट की कंडीशन जो है 3 साल तक नेक्स्ट मीट करनी है. तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? देयर वर टू अप्रोचेस दैट आई हैव टॉट यू. याद है किसी को कौन सी दो अप्रोचेस हम लोगों ने कल की क्लास में कवर करी थी? डेफर्ड इनकम एंड नेट एसेट. नेट एसेट अप्रोच में क्या करते थे? मान लो 1 लाख का एसेट है, 20,000 की ग्रांट है, तो उसमें से डिडक्ट कर दो और जो 80,000 जो नेट अमाउंट आपके पॉकेट से जा रहा है, उस बेसिस पे आप एसेट को रिकॉर्ड और डेप्रिशिएट भी करोगे. दैट वाज नेट एसेट अप्रोच. सेकेंड अप्रोच जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ी थी, विच वाज योर डेफर्ड इनकम अप्रोच, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी कि मान लो 20,000 की मेरे पास ग्रांट आई है, ठीक है. तो 20,000 की ग्रांट कितने साल के लिए आई है? 5 साल के लिए आई है. तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर 5 years आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस ग्रांट इनकम, जिसमें मैंने आपको वॉल स्ट्रीट का एग्जाम्पल भी दिया था, wherein I said let's say you all have paid your fees to the institution, correct? तो अब when you pay the fees for let's say 5 subjects you have paid for it, तो अब क्या होगा? For all these subjects that you have paid, every quarter you will be getting the classes. अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है, वेल एंड गुड. नहीं भी होता, टीम विल सपोर्ट यू, टीम विल प्रोवाइड यू द न्यू क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, राइट? तो अब डू यू थिंक टिल द टाइम वॉल स्ट्रीट डज नॉट ऑफर द सर्विसेज टू यू, क्या वो अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं, वो उनके लिए तो लाइबिलिटी रहने वाली है. तो दैट वाज द डेफर्ड इनकम अप्रोच दैट वी हैव स्टडीड, कि आपने गवर्नमेंट से पैसा तो रिसीव कर लिया, but you have to meet the conditions for the next 5 years. So it's an obligation onto you. Till the time year on year आप गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते हो, तब तक आप उसको अपने इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो. That's what we did as per the matching concept, right? ये सारी चीजों के बेसिस पे we have done a few questions also, and last I remember that I have given you one question as a homework. For those of you who are coming in for the first time, I have just given a recap, और मैं कल की क्लास में जो होमवर्क क्वेश्चन था, I just discussed it in the class. But still, wherever you are not able to understand or cope up, you can let me know in the class itself. And apart from that, please make sure that you cover the recordings. Now let's do the question. Wherever you find anything difficult in here, batana.
It says company bought an asset on 1st of July. अब first thing when you look at a question, एक तो आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, दूसरी चीज है ईयर एंड. ईयर एंड बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर इसलिए करता है बिकॉज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चीजों को प्रो रेटा बेसिस पे एलोकेट करना पड़ेगा. प्रो रेटा मीन्स दैट आई एम गोइंग टू एलोकेट इट ऑन द मंथली बेसिस. ठीक है. सो द क्वेश्चन सेज कंपनी बॉट एन एसेट ऑन 1st of July 2009. ईयर एंड क्या है, 31st of March. ओके. कितने का परचेज करे, 1200 का. स्क्रैप वैल्यू इज 200 एंड लाइफ है 20 years. ठीक है. अब मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि दोनों अप्रोचेस से आई वांट यू टू डू इट. तो जिन्होंने क्लास मिस आउट भी करी थी, थ्रू दिस क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कांसेप्ट दैट वी हैव डन यस्टरडे. ठीक है. तो अब हमारे पास पहली चीज गिवन है एसेट. आई एम नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस पार्ट इनटू एनी ऑफ द कि नेट एसेट अप्रोच है, डीआई अप्रोच है. सबसे पहले कुछ चीजें कॉमन रहती है, पहले वो करते हैं. एसेट कितने का है, 1200 का है. स्क्रैप वैल्यू कितने की है, 200 की है. और लाइफ कितनी थी, 20 years. ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है. कैन आई सिंपली लुक एट कि हमारी गवर्नमेंट ग्रांट कुछ रिसीव हो रही है. यस इट इज 40% ऑन कॉस्ट, राइट. 40% of 1200, which is going to be your just 480, राइट. तो आपने गवर्नमेंट से जो है $480 रिसीव करे. अब एक बात बताओ, जब मैं गवर्नमेंट से पैसा रिसीव कर रहे उस पॉइंट इन टाइम पे मेरे लिए तो वो इनकम की तरह हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, राइट. बट क्या पूरा का पूरा पैसा हमारी इनकम है, नहीं, राइट. तो इसी वजह से आफ्टर दिस पॉइंट व्हाट डू, वी स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स दिस क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट वाज व्हाट, फर्स्ट पार्ट इज वाया नेट एसेट अप्रोच. नेट एसेट अप्रोच क्या कहता है, हमारे पास एसेट कितने का है, एसेट है 1200 का. ग्रांट कितनी रिसीव हो रही है इस चीज पे, 480 की. सो व्हाट इज द डिफरेंस, 720. This 720 I would have actually paid to buy this asset. आप लोग इस चीज से अग्री करते हो. टोटल 1200 का एसेट था, जिसमें से 480 तो गवर्नमेंट ने ही पे कर दिए, तो मेरे को तो नेट 720 का पड़ा है. अब अगर मुझे एसेट 720 का पड़ रहा है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ दिस एसेट, 20 years, राइट. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इफ आई एम यूजिंग नेट एसेट अप्रोच, तो जो भी आपका नेट अमाउंट आने वाला है ऑफ दैट एसेट, एट दिस पर्टिकुलर प्राइस आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द एसेट एंड डेप्रिशिएट इट. ठीक है जी. सो हाउ डू आई चार्ज डेप्रिसिएशन इन दिस केस, एसेट का प्राइस कितना है 720 माइनस स्क्रैप वैल्यू भी तो गिवन है क्वेश्चन में, 200 divided by 20. So what have I done over here? The price of the asset minus scrap value divided by 2, जो भी हमारी यूजफुल लाइफ है. अगर आपको क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं गिवन, which method are we going to use? स्ट्रेट लाइन मेथड. और स्क्रैप वैल्यू ना गिवन होती सिर्फ तब जीरो लेते हैं, यहाँ पे तो गिवन थी, तो यू हैव टू टेक द सेम ऑल्सो. ठीक है. अब बताओ हमारे पास कितना बचा, 520 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, 126. सिर्फ 26. ठीक है जी. दिस इज 26 पर एनम दैट यू आर गेटिंग. अगर देखा जाए एसेट परचेज करा कब था, 1st July. ईयर एंड कब हो रहा है, 31st March. हाउ मच टाइम पीरियड इज देयर, 9 months, right. If there is a 9 months का टाइम पीरियड, so I cannot depreciate it for the entire year. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 26 को I will simply multiply it by 9/12. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19.5. ठीक है. तो 19.5 हमारे पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया. प्लीज हैव अ लुक अप टिल हियर एंड टेल मी इफ दिस इज ओके टू यू ऑल. यहां तक कोई भी डाउट है? Have you all jotted this down? Do you want me to repeat anything? Next is that I was talking about. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, आपको क्या करना है,
एफएस एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। एफएस एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि यार हम लोग पूरी पीएनएल बैलेंस शीट नहीं बना सकते, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। दैट मीन्स वी आर जस्ट गोइंग टू टेल इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द पीएनएल एंड योर बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर इन द फर्स्ट पार्ट इटसेल्फ, हाउ विल आई पोस्ट इट, आई एम जस्ट डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट एसओपीएल एंड योर एसओएफपी। अब क्या क्या चीजें जाती हैं, सबसे पहले तो एसओपीएल के अंदर डेप्रिसिएशन चला जाएगा, कितने का, 19.5 का। अब मुझे क्या गवर्नमेंट ग्रांट अलग से डालने की नीड है, नहीं। व्हाई डू आई नॉट हैव टू पोस्ट द गवर्नमेंट ग्रांट सेपरेटली इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज गवर्नमेंट ग्रांट हमने नेट ऑफ ऑलरेडी कर दिया नेट एसेट, मतलब एसेट के अंदर। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करूंगी तो देयर विल बी डबल काउंटिंग। ओके, नेक्स्ट चीज है एसओएफपी के अंदर आई विल बी पोस्टिंग द अमाउंट ऑफ द एसेट। एसेट कितने का है मेरे पास, 720 का बचा था, लेकिन 19.5 का डेप भी तो लगा। अब कितने का बचेगा, 700.5। इज दिस ओके टू यू ऑल? नाउ नेक्स्ट चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट अप्रोच दैट वी हैव डन वाज द नेट एसेट पार्ट। नेक्स्ट अप्रोच दैट आई हैव अवेलेबल टू यू गाइस इज डीआई। अब डीआई के अंदर हम लोग क्या चीज बोलते हैं कि लेट्स से now in this particular part of the question, let me just write it as in this particular part of the question, what was the amount of government grant, 40% on cost, which was $480. So now in this part of the question, what did we discuss over here? तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, गवर्नमेंट ग्रांट हमारे पास कितनी है, 480 की that I have received. ठीक है, now this $480 that I have received as government grant, what do I need to do over here? अब आपने पैसे तो रिसीव कर लिए, लेकिन यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज, या फिर आपको नेक्स्ट 5 years के लिए, इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 20 years के लिए यू हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑल्सो ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? तो अगर आप पूरी की पूरी ग्रांट दैट यू आर रिसीविंग, इफ यू रिकॉग्नाइज दिस एज योर इनकम ऑन डे वन इटसेल्फ, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने इनकम को अर्ली रिकॉग्नाइज कर लिया बुक्स के अंदर। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, व्हेन डू वी रिकॉग्नाइज एन इनकम इन द बुक्स, व्हेन वी हैव प्रोवाइडेड द सर्विसेज। हम लोग तो अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। अगर मान लो आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, आपने कोई पैसे रिसीव नहीं करे, स्टिल व्हाट डू, वी स्टिल कैन रिकॉग्नाइज इट एज एन इनकम, राइट? मान लो आप लोगों ने जो है यहाँ पे क्लासेस ले ली और आप बाद में पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो आपने क्लासेस ले ली, तो यानी कि इंस्टीट्यूट विल बी एक्सपेक्टिंग दैट यू विल हैव टू मेक द पेमेंट फॉर द फी, करेक्ट? ये चीज अग्री कर रहे हो? तो यानी कि अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पैसे नहीं रिसीव कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे चुके हो, स्टिल यू कैन रिकॉर्ड इट एज एन इनकम। बट इफ इट इज अदर वे अराउंड, कि आपने पैसे रिसीव तो कर लिया बट यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द सर्विसेज, सो टिल द टाइम यू डू नॉट डिलीवर what you have agreed for, you cannot call it as your income. That's what we follow. Agreed? तो यानी कि अगर मैं इस इनकम को और पहले से ही 480 को रिकॉग्नाइज कर लेती हूँ, तो दैट विल बी रॉन्ग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखा जाए तो 480 जो आपने गवर्नमेंट से रिसीव करे है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, इज दिस एन ऑब्लिगेशन फॉर यू ऑल? एंड व्हाट डू आई मीन बाय ऑब्लिगेशन? that in future you have to meet the requirements of the government. आपने ये advance income receive करी है, तो आपके लिए ये liability है. Year on year you are going to recognize this as and when you meet the requirement of the government. Right? इस चीज से do you all agree? तो अब यानी कि देखा जाए, so how much is the government grant? It is $480. अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? What is the useful life of the asset in this question? 20 years. I'll repeat it again. हमारे पास 480 की ग्रांट है, 20 years life है, so that means 480 divided by 20. Year on year, how much grant can I recognize as an income? 480 divided by 20. It will be $24. इस चीज से अग्री कर रहे हो? But this is per annum.
हम लोगों ने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करी कब है? जब एसेट परचेज करा। और एसेट कब परचेज करा था? 1 जुलाई को। When is the year ending? 31st of March. So what is the duration in between the same? 9 months. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? We are not going to recognize entire 24 as the income at the year end. We are only going to recognize it for how many months? For 9 months. तो कितना आ रहा है? $80. Is this okay to you all? So what did we learn in the DI approach? कि हम लोगों ने जितनी भी ग्रांट रिसीव करी है, we are going to split as per the life of the asset. Now how do I continue this forward? आप लोगों ने एसेट कितने का परचेज करा था? अगेन $1200 का। अब यहां पर आपको डिडक्ट करने की नीड नहीं है। आप क्या करोगे? जितने का एसेट है उतने पे ही यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट। लेकिन एसेट विद टाइम वेयर एंड टेयर होगा। तो यानी कि विद टाइम आई विल ऑल्सो हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन द सेम। डू यू गाइज अग्री विद द सेम? तो डेप्रिसिएशन अब कैसे चार्ज करेंगे? 1200 कॉस्ट है। डू वी हैव एनी स्क्रैप वैल्यू? 200 की डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ विच इज 20 years। तो कितना आ गया? 1000 डिवाइडेड बाय 20। दिस इज 50 पर एनम। मुझे कितने टाइम की चाहिए? 9 months. How much will it be? $37.5. एक बार ये चेक करो, इज दिस ओके टू यू गाइस? श्योर? नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव अवेलेबल इज, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? आपको एफएस एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। सो दैट मीन्स व्हाट विल आई डू? आई विल जस्ट मेक अ शॉर्ट पार्ट ऑफ द सेम एसओपीएल एंड एसओएफपी। एसओपीएल के अंदर हम लोग क्या चीज पोस्ट कर देंगे? एक तो डेप्रिसिएशन और दूसरी चीज है गवर्नमेंट ग्रांट जो मेरी इनकम है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना है? अभी आपने ऊपर निकाल के दिखाया है 37.5। मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैंने इसको ब्रैकेट्स में डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, इंस्टेड वी आर गोइंग टू यूज ब्रैकेट्स इन हियर। नेक्स्ट चीज, गवर्नमेंट ग्रांट दैट आई एम रिसीविंग। हाउ मच डिड आई रिसीव? 480। लेकिन ये 480 तो आपने एडवांस में पैसे रिसीव करे, isn't it? So it was a liability for you guys. So now this 480 which I have received, out of this, अब इस चीज को ध्यान से देखना, लाइफ कितनी थी? 20 years। उसके बेसिस पे I have calculated the figures for the 9 months also. तो only this $18 जितना आपने 9 महीने यूज करा है, only that can be recognized as your income on 31st of March। रिमेनिंग अमाउंट जो आपने रिसीव करा है, कैलकुलेट करके बताना कितना है? 462। This 462 that you have received is in advance income, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? As deferred income. This is there. And what do I mean by deferred income? It is simply your liability in the books. Okay? लेकिन अब लाइबिलिटीज भी दो टाइप की होती है। एक होती है विद इन 12 months यू हैव टू पे, या विद इन 12 months यू हैव टू रिकॉग्नाइज। एक होती है आफ्टर 12 months। तो अगर विद इन 12 months है करंट लाइबिलिटी, आफ्टर 12 months है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो अगर आप देखोगे तो इन द नेक्स्ट ईयर अगेन इसमें से कुछ पार्ट 12 months का जो होगा वो आई रिकॉग्नाइज इट एज माय इनकम, रिमेनिंग मैं उसके बाद वाले ईयर्स में करूंगी। करेक्ट? तो अगर देखा जाए so for full year what was the income that we were supposed to recognize? 24, right? तो अब deferred income के अंदर अगर मेरे को current and non current liability में split करना है, what am I going to do over here? 24 will be posted in here, and what is the remaining balance now? 438. This will go to your non current liability. Is this part of the deferred income making sense to you all? Sure. Noted this down. Can I restart? ठीक है जी।
तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर एसओपीएल और एसओएफपी पोस्ट कर रहे थे। एसओपीएल के अंदर हम लोगों ने डेप्रीसिएशन दिखा दिया, गवर्नमेंट ग्रांट कितनी थी, 18 थी, तो 18 इज माई इनकम, मैंने 18 पोस्ट कर दिया। एसओएफपी में जाएंगे, पहली चीज तो एसेट, एसेट कितने का है, 1200 का। डेप्रीसिएशन कितने की लगेगी, 37.5, तो कितनी बची वैल्यू, 1162.5। ओके, देन in the liabilities what do I have in here, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी है और एक करंट लाइबिलिटी में है डेफर्ड इनकम, कितना कितनी है, 438 और 24। तो जो भी चीजें हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करी, आई हैव जस्ट शोन यू हाउ डू वी पोस्ट इट इन द बुक्स। बिकॉज क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर आस्किंग यू नॉन करंट लाइबिलिटीज में कितना अमाउंट आना चाहिए, करंट में कितना जाना चाहिए, तो आप लोग गलती ना करो। ये सारी चीजें इसीलिए इतनी डिटेल में हम लोग यहाँ पर कर भी रहे हैं। ऑफ कोर्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पूरा आप ये तो करने बैठे ही जाओगे, जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना करोगे, बट इफ यू डू नॉट नो दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आप एमसीक्यूज के इतने सिमिलर ऑप्शंस होते हैं दैट यू विल एंड अप चूजिंग अ रॉन्ग वन। तो विच इज व्हाई लेट मी नो अगर कोई भी स्टेप क्लियर नहीं है, आई विल रिपीट इट अगेन। Let me proceed further. Now, to be honest, I was planning to start off with the remaining part of the concept, but let me give you one more question on this basis so that those of you who have skipped out this particular area of the concept are also done with the same. अब मैं जो आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ दैट इज ऑफ रीपेमेंट ऑफ ग्रांट का टॉपिक, ठीक है। आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू द टॉपिक, बट जो पिछला आप लोग सीखे आए हो वो सारी चीजें यू हैव टू डू इट हियर ऑल्सो, एंड देन वहीं से आई विल कंटिन्यू एंड टीच यू दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ओके, तो एक मिनट, जस्ट लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। आप लोगों को सिर्फ इतने तक ही क्वेश्चन करना है। दिस पार्ट दैट आई एम राइटिंग एट द मोमेंट इज व्हाट आई विल टीच, ठीक है। सो यू ऑल कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। डेफर्ड इनकम अप्रोच। हाँ जी, it's your wish. Like, actually, yeah, we are actually in the middle of the question when you came. I would suggest you to go through the recording instead because abhi we are in the middle of the accounting standard, तो आपको थोड़ी सी difficulty होगी, no doubt. ठीक है? Year end is 31st of December. No worries, dear. If anybody is uncomfortable, वहाँ पे बढ़िया seat है, you can take that. Yes, guys, use deferred income approach and please solve this question.
Yes. इसमें don't prepare FS extract, but rather can you all pass the journal entries this time? You have to teach you something on that basis. जर्नल एंट्रीज में भी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. एसेट परचेज की, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की, फिर डेफर्ड इनकम की, जो ईयर एंड पे रिकॉग्नाइज करते हैं ना इनकम, जो ग्रांट से डीआई में, मतलब सॉरी डीआई से ग्रांट में ट्रांसफर करते हैं. ये 3 एंट्रीज आप लोग को पास करनी है. दैट्स इट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. नहीं, अलग अलग करो पोस्ट. एक आपको 1 जुलाई की आपकी क्या एंट्रीज बनेंगी वो बतानी है, एंड ऑन 31 दिसंबर व्हाट शुड बी द एंट्रीज. जस्ट दीस 2 थिंग्स आई वांट. ठीक है. एसेट का बेचा 31 दिसंबर को ना, 31 दिसंबर की भी बना लो. Guys, done? Can we discuss? Okay. So the question says, on 1st of Jan, हमारा year start हो रहा है. Guys, please. On 1st of Jan, our year is starting, and on 31st of December, अपना year end given है. So that means I'll have to take that into consideration while recording the transactions. Can we please start now? एसेट हम लोगों ने परचेज कब करे? $10,000 के कॉस्ट है. लाइफ इज 2 years and the grant that I'm receiving is 40% on the cost. When I purchase the asset as per deferred income approach, तो मैं एसेट कितने पे रिकॉग्नाइज करूंगी? 10,000 पे या फिर डिफरेंस अमाउंट पे? 10,000 पे. So first thing, or the first entry that I will have to do pass over here is to purchase the asset, which I have done on which date? 1st of July, right? तो एंट्री क्या पास होगी उस केस में? एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है. एंड व्हाट विल आई क्रेडिट ओवर हियर? बैंक अकाउंट. और अमाउंट कितना पोस्ट हो जाएगा यहाँ पे? 10,000. ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस मच? श्योर. सेकेंड चीज, आप लोगों ने क्या करी है? गवर्नमेंट की ग्रांट भी रिसीव करी है. लेकिन क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट दैट आई एम रिसीविंग, इज दिस माई इनकम और इज दिस माई लाइबिलिटी? ये तो मेरे लाइबिलिटी है ना. और कितने पैसे रिसीव कर रहे हैं हम लोग? 40% ऑन कॉस्ट विच इज 10,000. तो कितने रिसीव करे होंगे मैंने? $4,000. Now this $4,000 that I am receiving, अब यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे साथ? What do I have to do? We'll have to pass the journals of the same. Now that I am receiving the money, तो मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज होगा, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम कर लो, क्योंकि फिर डेफर्ड इनकम से हम लोग जो है लेकर आएंगे, ग्रांट में रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है. इतनी चीज समझ आई? कितनी रिसीव करिए गवर्नमेंट ग्रांट? 4,000. ठीक है. अब हम लोगों ने बोला यहाँ पर कि यार जो पैसे रिसीव कर रहे हैं ना, ईयर ऑन ईयर वी विल रिकॉग्नाइज इट इन आवर बुक्स. करेक्ट. अब हमारे पास लाइफ कितनी है एसेट की? लाइफ है 2 years. ठीक है जी. ग्रांट कितनी रिसीव कर रहे हो आप लोग? 4,000. ठीक है. 4,000 रिसीव करी, 2 years लाइफ है, तो यानी कि हर साल में 2,000 रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ. अग्रीड. बट व्हेन डिड आई परचेज दिस एसेट? ऑन 1st of July. So how many months are there?
31st December year end है, so there are 6 months which are falling. 2000 पूरे साल का है, तो 6 months का कितना होगा? $1000. Do you all agree with the same? Sure. यहां तक ओके आप लोगों को? Any doubts up till here? Anything, guys? Okay. Now that you have a government grant that you have received is $1,000, what are we going to do next over here is we will have to do the entry of the same on 31st of December. Agreed? तो अब 31st of December को, 31st December, what is the year end? 08. 31st December 08 को हम लोग क्या करेंगे? अपनी इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में. एंड व्हेन आई रिकॉग्नाइज दिस इनकम, तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है. लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे? एंट्री क्या बन जाएगी? DI डेबिट टू SOPL, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज गवर्नमेंट ग्रांट, व्हाटएवर इट इज. ठीक है जी. तो कितना कितना रिकॉग्नाइज कर दोगे फर्स्ट ईयर में? 1000, क्योंकि हम सिर्फ 6 months का रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज एन इनकम. इज दिस ओके टू यू ऑल? श्योर. अब आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट ईयर एंड पे पहुंचते हैं. नेक्स्ट ईयर एंड हम लोग फिर सेम चीज करने वाले हैं जब तक एसेट बेच नहीं रहे या लाइफ नहीं खत्म हो रही. करेक्ट? तो डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू SOPL. लेकिन नेक्स्ट ईयर में कितना रिकॉग्नाइज करूंगी एज मैं इनकम? 2000. वाई 2000? क्योंकि ये पूरे साल में जो, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे पास सिर्फ 6 months थे. This time I have available 12 months, and on that basis I am going to recognize it from my liability to my income. Is this okay to you all? Sure. अब एक बार ना क्वेश्चन के अंदर एक सेंटेंस पढ़ते हैं. ठीक है? अब क्वेश्चन कह रहा है, गवर्नमेंट ने, यार गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है तो गवर्नमेंट भी कहेगी कि यार तुम मेरी कुछ बातें तो मानो. तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर तुम 2 साल पूरे यूज कर रहे हो, जो उसकी लाइफ है, I am absolutely okay. Keep the money with yourself. But if you sell within 12 months, then in that case, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ सकता है? You will have to refund the amount in that case. तो गवर्नमेंट आपसे कुछ पर्टिकुलर पार्ट रिफंड मांग सकती है, गवर्नमेंट आपसे पूरा पैसा रिफंड मांग सकती है. So in the first part which I have given to you, I have mentioned that the government is asking for a full repayment. इतनी बात समझ आई? और हम लोगों ने क्या चीज बोली है? अगर आप 2 साल यूज कर रहे हो, गुड टू प्रोसीड. लेकिन यही आपने कब सेल करा एसेट को? 31st of December 09. तो हमने कितने टाइम में सेल कर दिया? 1.5 year. देखा जाए तो मेरे 2 साल कब होते? 1 जुलाई 10 में. इस पॉइंट इन टाइम के आपके 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, राइट? अगर मैं सिर्फ इतना टाइम पीरियड देखूं तो यहां तक कितने इयर्स पास हुए हैं? सिर्फ 1.5 year. So did I breach the condition of the government? और अगर गवर्नमेंट की कंडीशन ब्रीच करी तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा. तो नाउ दैट आई विल बी सपोज टू रीपे द मनी, यू गाइज ओनली टेल मी कि अब हम लोगों ने इनकम में रिकॉग्नाइज कर लिया है, कुछ पार्ट अभी भी DI में पड़ा है, तो गवर्नमेंट को पैसे वापस कर रहे हैं. आउटफ्लो होगा पहली चीज. ठीक है? एक एक करके एंट्रीज बनाते हैं. Wherever it is not clear, please unmute and ask. Okay? So I said कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पैसे वापस. सबसे पहले देखो आपको कितने पैसे वापस करने हैं, बताओ. 4000 जितना आपको गवर्नमेंट ने दिया है, सिंस दिस वाज अ केस ऑफ फुल रीपेमेंट, आपको वापस करने पड़ेंगे. करेक्ट? हाँ या ना? एक बात बताओ, 4000 में से कितनी हम इनकम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं और कितना DI में अभी भी पड़ा? 3000 इनकम में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, 1000 अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ. सबसे पहले तो अपनी लायबिलिटी खत्म करो, क्योंकि अब तो आपकी कोई लायबिलिटी तो है नहीं. तो DI क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. कितने से?
1000 से, और जो पीएनएल में आपने 3000 इनकम रिकॉग्नाइज करा, 1000 पहले फिर 2000 बाद में, क्या वो सही है? अब तो पैसा वापस दे दिया तो आपकी तो जेब से चले गए, आपका तो नुकसान हो गया। तो हम लोग कहां से पास ऑन करेंगे? एसओपीएल से। एसओपीएल डेबिट कर दोगे 3000। इज दिस जर्नल एंट्री मेकिंग सेंस टू यू ऑल? तो मैंने यहाँ पर क्या करा, बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों करा? बिकॉज इट वाज अ कैश आउटफ्लो, बैंक बैलेंस आपका कम होगा, एसेट रिड्यूस हुआ, क्रेडिट करा। डेबिट क्या क्या करेंगे? एक तो लाइबिलिटी, मैंने लाइबिलिटी खत्म होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब ये जो पीएनएल के अंदर जो भी आपने इनकम रिकॉर्ड करी थी वो मैंने सिंपली रिवर्स ऑफ कर दी कि भाई ये इनकम है, पैसे वापस कर दिए अब तो। ठीक है, इज दिस ओके टू यू ऑल? श्योर? इस क्वेश्चन के अंदर जितना आप लोगों ने स्टार्टिंग से करा सब सेम रख रही हूँ, बस मैं एक जो कंडीशन फुल रीपेमेंट की थी, आई एम जस्ट चेंजिंग दैट। ओके, बट बिफोर दैट ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू ऑल्सो गिव मी अ कंफर्मेशन, यहाँ तक ओके है? Okay then, just allow me a second, let me write the second condition. This is the second part of the question. सिर्फ condition change कर रही हूँ, बाकी सब same है. Okay, let's say okay. Now, on the basis of what we have done previously, same basis पे you have to try this one also. Done? Yes, guys, can we discuss? Okay, so the question says, is sold within first year, then full repayment is required. अगर गवर्नमेंट ने अब कंडीशन रख दी कि अगर आप पहले साल में बेच देते हो तो आपको पूरा का पूरा 4000 वापस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहले साल में नहीं बेचते, उसके बाद बेचते हो तो आपको 500 का रिफंड देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, कंपनी ने बेचा कब है? 31 दिसंबर, विच इज आफ्टर 1 ईयर, तो हमें कितने का रिफंड देना पड़ेगा? 500 का। सिर्फ आपने रिसीव कितने करे थे? 4000। और डेफर्ड इनकम में अभी भी कितना पड़ा हुआ था? 1000। इतनी चीज से अग्री कर रहे हो? अब जब मैंने गवर्नमेंट को रिफंड करा तो मैं तो सिंपली बोलूंगी ना कि भाई मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो आई विल क्रेडिट 500। डेफर्ड इनकम में लाइबिलिटी जो पड़ी हुई है, अब वो लाइबिलिटी तो है नहीं कुछ मेरी। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास लाइबिलिटी पड़ी कितने की है? 1000 की। जितने से भी आपकी लाइबिलिटी पड़ी है वो हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो लाइबिलिटी थी 1000 की। कैन यू गाइस सी अ डिफरेंस व्हिच इज कमिंग? 500 का। अब ये जो 500 का डिफरेंस है, दिस बैलेंसिंग फिगर विल ऑलवेज गो टू योर पीएनएल। अब इसका मैं लॉजिक बताती हूँ पहले आपको। 1000 की डेफर्ड इनकम थी जो बची हुई है, जो मैंने रिकॉग्नाइज करनी थी, लेकिन अब आपने एसेट बेच दिया तो भाई आपकी ऑब्लिगेशन भी खत्म हो गई, अब तो आपको कुछ मीट नहीं करना। तो अब क्या हुआ कि हमने उस लाइबिलिटी को जब खत्म करा, देखा जाए तो 4000 आपने गवर्नमेंट से रिसीव करे हैं, जिसमें सिर्फ 500 वापस करने। हाउ मच हैव यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज योर इनकम इन द पास्ट? 3000। और आप पैसे वापस कितने कर रहे हो? सिर्फ 500। तो 500 अभी भी तो बच रहे थे। तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो ऑटोमेटिकली आएगा वो आपका पीएनएल में इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 500 जो हमने तब रिकॉग्नाइज नहीं करा था एज एन इनकम, अब 500 का तो आपको फायदा हुआ ना, देखा जाए तो आपने एसेट बेच भी दिया, स्टिल आपको पैसे वापस गवर्नमेंट को नहीं देने, तो दिस 500 इज रिकॉर्डेड एज योर इनकम। दैट वाज द लॉजिक। बट नाउ हियर आप लोगों को अगर जर्नल एंट्रीज बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे? जितना आपने गवर्नमेंट को पे करा वो डालो। सेकेंड चीज, जितना डेफर्ड इनकम में whatever is your remaining liability उसको खत्म कर दो। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो पीएनएल के अंदर चली जाएगी। इज दिस लॉजिकली एंड हाउ डिड आई मेक दिस एंट्री क्लियर टू यू ऑल? श्योर? बिल्कुल कंफर्म? कैन आई प्रोसीड फॉरवर्ड? नाउ आई हैव अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस particular area which is left. I'll just complete the same
and then I'll give you a break and then test. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग we'll proceed. So now अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, that was first part was government assistance, then government grant पढ़ी, फिर government grant related to asset पढ़ी जो अभी हम लोगों ने करा, net asset approach, deferred income approach. अब next चीज जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, that is grant related to income. What do I mean by grant related to income? Grant related to income simply means कि if government is paying you money for the fact of कि government आपको कह रही है कि भाई मैं आपको पैसे तो दे रही हूँ, but this money that I'm paying you is for, let's say, आप अगर रूरल एरिया में फैक्ट्री सेटअप कर दो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, 20% सैलरीज आई पे, तो गवर्नमेंट आपको एक्सपेंसेस मीट करने में हेल्प करती है जब, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होती है. या फिर आपको कोई भी और रॉ मटेरियल्स में हेल्प कर रही है, किसी भी चीज में हेल्प कर रही है. अगर आपके पास एसेट बिल्ड करने के लिए, दैट मीन्स एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए या बाय करने के लिए ग्रांट आ रही है, only then will it be considered as government grant related to your asset. Rest everything goes in your grant related to income. I'll repeat it again. अगर गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है to buy the asset, to construct the asset, only in these two cases I am going to recognize this government grant as my related to your asset. और आप दोनों अप्रोचेस में से जो भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर कुछ मेंशन, मतलब अगर आपकी एसेट रिलेटेड नहीं है, दैट मींस आप ना एसेट बाय कर रहे हो ना कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो सारी की सारी आपकी इनकम में आ जाती है. सेम तरीका रिकॉर्ड करने का, बट वी कंसिडर इट इन हियर इटसेल्फ. तो एक क्वेश्चन के थ्रू लेट्स अंडरस्टैंड द सेम. Year 0, year 1 and 2. Let's say W and S is basically your wages and salaries. ठीक है, yes guys, have you noted this down? Yes guys, done noting? Can we proceed? The question says government grant जो आपने receive करी है, that is how much? 250,000. ठीक है, और गवर्नमेंट बोल रही है कि यार जितनी भी फ्यूचर लेबर कॉस्ट होगी उसका 30% गवर्नमेंट इज पेइंग यू. लेकिन यार गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए आपको पे करती रहेगी लाइफ लॉन्ग. गवर्नमेंट एक रिस्ट्रिक्शन डाल रही है कि भाई मैं तुम्हें 2.5 लाख दूं. तो गवर्नमेंट ने हमें 2.5 लाख दिए, किस लिए? फ्यूचर लेबर कॉस्ट की 30% गवर्नमेंट कवर कर रही है. ठीक है, तो अब आपकी जितनी भी ईयर ऑन ईयर लेबर कॉस्ट होगी, आप क्या करोगे? This grant that you have received is again an advance income for you all. Agreed? तो अगर हमारे लिए एडवांस इनकम है तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर? This will again be recognized in the deferred income. एंट्री क्या पास होगी अगर पैसे रिसीव कर रहे हो तो? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट की जगह टू डेफर्ड इनकम आई एम राइटिंग बिकॉज डीआई अप्रोच इसमें चलती है. तो 250,000. ठीक है, आप सॉरी this 250,000 that I have received from the government, what do I need to do because of the same? अब इस 250,000 को I cannot be like यार पूरी की पूरी मेरी इनकम, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ईयर ऑन ईयर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. तो अब अगर मैं एट द एंड ऑफ ईयर 1 I come at, if I come at the end of year 1, what is going to happen in this case now? Sorry, at the end of year 1, the question said कि आपकी wages and salaries है कितने की? 3 लाख की. What is the nature of this? एक्सपेंस है. तो आप जो है wages and salaries जब पे करोगे तो आप क्या करोगे? अपने एक्सपेंसेस दिखाओगे. एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है? wages and salary account
डेबिट 300,000 से आपने पे कर दिए, तो कैश और बैंक अकाउंट कितना 300,000 नहीं भाई, मैं बताती हूँ कैसे होगा जो युवा से। इतनी बात समझ आई? आप अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि आप सबको आई एम पेइंग यूर सैलरी ऑफ 50,000, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ने मुझे पैसा भी दिया आप लोगों को सैलरी पे करने के लिए 30%, आप लोगों को तो 50-50 हजार सबको जाने वाला है, इजंट इट? उसमें तो कोई नेट ऑफ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दिए, मेरे को वो पैसे हेल्प कर रहे हैं पे करने के लिए, बट आपको तो उतने ही जा रहे हैं ना जितने आपको मिलने चाहिए थे। तो इसलिए बैंक में 3 लाख ही जाएगा, उसमें कम नहीं करेंगे। इज दिस ओके टू यू ऑल? लेकिन मैंने डेफर्ड इनकम में कितना रिकॉग्नाइज करा था, 250,000। और जो ग्रांट है वो हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, 30% ऑन लेबर कॉस्ट। तो हमारी कितनी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, 30% ऑफ व्हाट इज द लेबर दिस ईयर, 300,000। तो पहले साल में मैं कितना रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ, मैक्सिमम 90,000 ओनली, राइट? तो इस 250,000 को जो मैंने रिसीव करा है, इसमें से 90,000 आई कैन रिकॉग्नाइज एज माई इनकम। इज दिस ओके टू यू ऑल? श्योर? 250,000 मैंने डेफर्ड इनकम रिसीव करी, जिसमें से 90,000 आई कैन रिकॉग्नाइज इट एज माई इनकम, लाइक एट द ईयर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। ठीक है, तो अब जब रिकॉग्नाइज करते हैं एज डेफर्ड इनकम, तो अब एक बात बताओ, डेफर्ड इनकम मेरी अब कम होएगी जब मैं इनकम में रिकॉग्नाइज करूंगी, या बढ़ेगी? कम होएगी, क्योंकि डेफर्ड इनकम क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी कम होगी तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, कितने से, 90,000। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे, हमने इनकम में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो इनकम है तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। बैंक में आपने जो पैसे रिसीव करे थे वो तो आपने फर्स्ट ईयर में ही कर लिया ना रिसीव। सो दिस एंट्री दैट आई हैव पास्ड वाज फॉर रिसीविंग द ग्रांट। तो आपने एक बार ग्रांट का पैसा रिसीव कर लिया, तो अब आप बार बार थोड़ी रिसीव करते रहोगे, अब आप उसमें से रिकॉग्नाइज करो। ये आपने एडवांस में जो पैसा रिसीव करा, आई हैव जस्ट नोटेड दिस डाउन, एंड देन ईयर ऑन ईयर आई एम रिकॉग्नाइजिंग दिस एज माय इनकम। ठीक है, इज दिस जर्नल एंट्री मेकिंग सेंस? इसी वजह से मैंने क्या करा है, इसके अंदर आई हैव इंक्लूडेड द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। व्हाट डिड आई डू ओवर हियर, आई सेड सेकेंड ईयर में मान लो वेजेस एंड सैलरीज है 4 लाख की। ठीक है, अब मैं डालती हूँ यहाँ पर, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? इज एनीवन स्टिल राइटिंग? ओके, नाउ एट द एंड ऑफ ईयर 2 हमें क्या करना पड़ेगा, वेजेस एंड सैलरीज कितनी है, 400,000, राइट? तो वेजेस एंड सैलरीज अगर 400,000 है, तो हम लोग एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट 4 लाख, बैंक अकाउंट पे कर रहे हैं तो पैसे बाहर जा रहे हैं, एसेट कम होगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। गाइस आई एम ओनली राइटिंग द रीजनिंग इन हियर कि एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड हाउ टू मेक द जर्नल एंट्रीज। अब भी अगर आप उसको याद करने की कोशिश करोगे एट दिस स्टेज, मार्क बाय वर्ड्स ऑन टू दिस थिंग, आगे जाकर आपको काफी प्रॉब्लम आने वाली है। मतलब अभी तो आएगी, एसबीआर के पेपर में भी आएगी, उसके अलावा एट द वर्क प्लेस ऑल्सो यूर। सो प्लीज फर्स्ट नो द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, नो द लॉजिक बिहाइंड दैट एंट्री, तो आप कभी गलती नहीं करने वाले। इज दिस ओके टू यू ऑल? श्योर? नेक्स्ट चीज, अब अगेन हमारे डेफर्ड इनकम में टोटल जो हमने रिसीव करा था 2.5 लाख था, जिसमें से 90,000 आई हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर 1। तो कितना बचा है, 160। ठीक है,
अब देखते हैं, अब मैं मैक्सिमम ग्रांट जो रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ इस ईयर में 40% ऑफ लेबर कॉस्ट, सॉरी माय बैड, 30% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 4 लाख। तो 4 लाख का 30% कितना बना, 1,20,000। क्या मेरे पास इतना डीआई में अवेलेबल है, 1,60,000 अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा ही है बल्कि। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव टू रिकॉग्नाइज फ्रॉम माई लाइबिलिटी टू माई इनकम एट द ईयर एंड, जब हम लोगों ने ये पूरी रिक्वायरमेंट मीट करी। तो अब एंट्री क्या बन जाएगी, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू एसओपीएल। कितना अमाउंट चला जाएगा, 120,000। और ये क्यों गया, क्योंकि ये लाइबिलिटी मेरी क्या हो गई, रेड्यूस हो गई, और इनकम हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर ली, विच इज वाई एसओपीएल के अंदर हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। इज दिस ओके टू यू ऑल? श्योर? कोई डाउट है अभी तक आप लोगों को, एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर? आई एम जस्ट इंक्रीजिंग दिस केस अ लिटिल बिट। लेट्स से अगर मुझे ईयर 3 भी गिवन होता, तो ईयर 3 में कैसे करते, लेट्स से ईयर 3 में वेजेस एंड सैलरीज है आपकी 500,000 की, ठीक है, यहां तक ओके। नाउ इफ आई गो डाउन एट द एंड ऑफ ईयर 3, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगेन वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट 500,000 टू बैंक अकाउंट वट एवर आई एम पेइंग, राइट। अब थर्ड ईयर में मेरे पास डेफर्ड इनकम में बच कितना रहा है, टोटल 2.5 लाख था, मैंने पहले कितना रिकॉग्नाइज करा, 90, ईयर 2 में रिकॉग्नाइज करा है 120, तो अब बचा कितना, 40,000, ठीक है, जो अभी मेरी लाइबिलिटी में पड़ा हुआ है, जिसको मैं रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ एज माई इनकम। ग्रांट जो है देखा जाए है 30% ऑफ लेबर कॉस्ट, विच इज 500,000 का। लेबर कॉस्ट कितनी है, 5 लाख ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 150,000। बट मेरे पास अवेलेबल कितना है, 40, तो हम सिर्फ 40 रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ओके। तो अब इस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, आई अगेन रिकॉग्नाइज डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू एसओपीएल, लेकिन हम पूरा 1.5 लाख रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास बचा ही सिर्फ 40,000 है। तो वट एवर इज रिमेनिंग वी विल रिकॉग्नाइज दैट, और बाकी आपका एक्सपेंसेस में रिकॉर्डेड ही है, तो नो वरीज फॉर द सेम, ओके। इज दिस क्लियर टू यू ऑल नाउ? यस कार्तिक, आई थिंक ये आपका डाउट था, इज दिस क्लियर टू यू? अब ये जो डेफर्ड इनकम है, जो आई सेड कि आप लोगों की बच रही है, ये सब चीजें है, इट वाज अ लाइबिलिटी फॉर यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी बुक्स के अंदर लाइबिलिटी सेक्शन में, बैलेंस शीट के अंदर आप उसको पोस्ट करोगे। अब डाउट आ सकता है कि मैम करंट लाइबिलिटी में या नॉन करंट लाइबिलिटी में, सिंस वी डू नॉट नो, इट विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कितनी आपकी वेजेस एंड सैलरीज है, तो आप उसको लाइबिलिटी सेक्शन में अगर एक्सट्रैक्ट है तो आप उसको जो है करंट लाइबिलिटीज में शो कर सकते हो सर, ठीक है। क्योंकि जितना आपको रिकॉग्नाइज करना होगा टिल द टाइम यू डू नॉट नो द नेक्स्ट ईयर फिगर, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो आप उसको करंट नॉन करंट में किसी में भी रिप्रेजेंट करोगे, यू विल स्टिल गेट अ मार्क फॉर द सेम, बट लाइबिलिटीज में दिखाना जरूरी है, ठीक है। और ये जो मैं ग्रांट को पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, वो एज एन इनकम हमारी बेसिकली शो हो रही है एवरी ईयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एसओपीएल एसओएफपी एक्सट्रैक्ट भी बना के दिखा दूं, तो क्या क्या चीजें जानी चाहिए थी हमारी, मैं आपको ईयर 2 का बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास डेफर्ड इनकम का भी अमाउंट बचे। एसओपीएल एसओएफपी, एसओपीएल में क्या क्या चीजें जाएंगी, एक तो जो ग्रांट रिकॉग्नाइज करी है, सेकेंड ईयर में कितनी रिकॉग्नाइज करी है, 120,000,
राइट? वेजेस एंड सैलरीज कितने थे सेकेंड ईयर में? 4 lakhs ना, 400,000। तो अब ये मेरी एक्सपेंसेस है तो मैंने नेगेटिव डाल दिया। नेट ऑफ करोगे तो आपका डिफरेंस अमाउंट ही आपने एक्चुअल में दिया भी है, देखा जाए तो आपका खर्चा है। अब हमारे पास डेफर्ड इनकम बच रही है, कितने की बच रही है? 40,000 की, वो आपकी एसओएफपी के अंदर चली जाएगी। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक वी हैड एनीथिंग एल्स। बस इतनी पोस्टिंग कर दें, कोई एसेट वगैरह तो है नहीं। लाइबिलिटीज में सिंपली आप जो है करंट या नॉन करंट में यू कैन पोस्ट दिस 40,000। इज दिस ओके टू यू ऑल नाउ? यस कार्तिक, और कोई डाउट है आपका? नहीं और इज मैम, दिस हो गया। मेकिंग सेंस टू यू नाउ? ऑल यस। राइट जी। मान लो कभी कभार आपने कुछ बहुत ही अच्छा काम करा, गवर्नमेंट आपसे बहुत इंप्रेस्ड है, गवर्नमेंट बोलते भाई आपको कोई कंडीशन मीट करने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत बढ़िया काम करा है, आपको हम लोग डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट कोई कंडीशन ही नहीं प्लेस कर रही। इस टाइप की ग्रांट को हम लोग क्या बोलते हैं? अनकंडीशनल ग्रांट। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन, आपके मतलब मे बी नेचर के लिए, मे बी इन्वायरमेंट मतलब के लिए, क्या पता लोगों के लिए, जो भी आपने करा है, आपके पास प्रैक्टिसेस की वजह से गवर्नमेंट आपसे खुश है और आपको पैसे देती है। दैट इज अनकंडीशनल ग्रांट। गवर्नमेंट कह रही है यार मैं तेरे से पैसे वापस ही नहीं लेने वाला हूँ, तो अपनी बुक्स में इनकम दिखा। ठीक है? सो नाउ दिस इज नोन एज अनकंडीशनल ग्रांट। So I'll simply call it as government has given अब एक बात ध्यान से समझो। अब गवर्नमेंट आपको जब आपकी पास्ट एक्टिविटीज की वजह से पैसे दे रही है, तो आपको कोई कंडीशन फ्यूचर में तो कंप्लीट करनी ही नहीं। अगर आपने फ्यूचर में जब कुछ कंप्लीट ही नहीं करना है, तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है। और अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये जो पैसा रिसीव करा, सीधा का सीधा जैसे ही रिसीव कर रहे हो वैसे वैसे इनकम में रिकॉग्नाइज कर दो। यहाँ पर कोई आपको ईयर ऑन ईयर स्प्लिट करने की नीड नहीं पड़ेगी। सो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री इन दैट केस? पैसे रिसीव कर रहे हो तो बैंक अकाउंट, डेबिट टू, सीधा सीधा जितना पैसा रिसीव करा पूरा का पूरा इनकम में रिकॉग्नाइज कर दिया इन दी SOPL itself. Okay? Is this okay to you all? Unconditional grant. यहां तक कोई डाउट है? अब मान लो गवर्नमेंट ने, एक बार पहले देख लो इफ यू हैवंट स्टिल रिटन इट डाउन। तो गवर्नमेंट ने अगर आपको किसी की पास्ट एक्टिविटीज की वजह से दिया है, फ्यूचर में आपको कोई नीड नहीं है कुछ मीट करने की, देन इन दैट केस यू कैन कंप्लीटली रिकॉग्नाइज दिस एंटायर अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड एज योर इनकम। ओके? नाउ द वेरी लास्ट पार्ट, लेट्स से गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं दे रही, आपको एसेट ही दे देती है, तो क्या करोगे? बैंक बैलेंस की जगह बस आप जो है एसेट को डेबिट कर दो। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो इफ you are receiving grant in the form of asset, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ये
अब इस चीज को बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब गवर्नमेंट ने आपको पैसे देने की बजाय, डिस्कनेक्ट हो गया। Let's say if the government has given you grant not in the form of money but instead in the form of asset, then in that case what are we supposed to do over here? आप जैसे बैंक में बैलेंस बैंक अकाउंट को इंक्रीज करते थे, सिमिलरली आप क्या करने वाले हो, अपने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एसेट के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। मान लो गवर्नमेंट ने आपको कोई मशीन दी है, तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगी, मशीन डेबिट टू डेफर्ड इनकम। सेम तरीका रहेगा, बस बैंक की जगह हम लोग डेफर्ड इनकम मतलब मशीन दिखा देंगे। ठीक है, और कौन से अमाउंट पे दिखाना पड़ेगा हमें, उसकी फेयर वैल्यू, यानी कि जो भी उसका मार्केट प्राइस होगा। एंड देन जो ईयर ऑन ईयर मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगी, वो हमारा किधर से जाएगा बताओ। डीआई को तो आप ईयर ऑन ईयर इनकम रिकॉग्नाइज कर दोगे, लाइबिलिटी आपने इनिशियली लाइबिलिटी रिकॉर्ड करा, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसको ईयर ऑन ईयर अमोर्टाइज करोगे और अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग डेप्रीसिएशन लगाते हैं किसी भी एसेट पे, सेम इस एसेट के ऊपर भी जो भी उसकी लाइफ होगी उसके बेसिस पे आई डेप्रीशिएटेड सिंपली। ठीक है, दोबारा समझो मैंने क्या चीज बोली, कि अगर आपको ग्रांट मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट, दैट मीन्स कि आपने गवर्नमेंट ने आपको बोला कि भाई मैं आपको कैश देने की बजाय मैं आपको सीधा मशीन दे रहा हूँ, मैं आपको सीधा सोलर पैनल्स दे रहा हूँ, तो भाई आपके लिए तो एसेट है, एसेट जितनी उसकी फेयर वैल्यू, जितनी उसकी मार्केट प्राइस होगी, आप उतने पे रिकॉग्नाइज करोगे। आपको स्टिल गवर्नमेंट की कंडीशन मीट करनी है तो आप डीआई भी रिकॉग्नाइज करोगे, और ईयर ऑन ईयर जैसे पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर देते इनकम, वो आप करते रहोगे। लेकिन जो आपका डेप्रीसिएशन लगेगा, जितने पे आपने मशीन को रिकॉर्ड करा, जो भी फेयर वैल्यू थी, ईयर ऑन ईयर उसकी यूजफुल लाइफ के बेसिस पे आप डेप्रीशिएट भी करोगे, जैसे आप नॉर्मली किसी भी एसेट को करते हो। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू। इज दिस मेकिंग सेंस? Anything that you guys would like me to repeat? Guys, here itself, let's say this is year 0, this is year 1 and 2. ठीक है, let's say गवर्नमेंट ग्रांट जो आपने रिसीव करी है, that is not money but instead a machine which is worth 100,000, ठीक है, जो आपने गवर्नमेंट से रिसीव करी, और इसकी लाइफ मान लो है 5 years। ठीक है, अब अगर मैं गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट, तो मेरी कंपनी का तो एसेट बढ़ रहा है, और एसेट बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो मैंने 100,000 से डेबिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पैसे कुछ नहीं गए, ये गवर्नमेंट से मैंने रिसीव करा है, राइट। और गवर्नमेंट की मान लो कंडीशन है कि आप पूरे उसको उसकी लाइफ पे यूज करने वाले, तो डेफर्ड इनकम में हम लोग क्या डाल देंगे, एसेट बढ़ा, डेबिट करा। नहीं नहीं, अनकंडीशनल ग्रांट हो गया ऊपर, ये देखो, तभी मैंने लिखा था अनकंडीशनल ग्रांट, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ द एसेट। दोनों चीजें अलग अलग है, मिक्स मत कर लो। ठीक है, कि पैसों की जगह गवर्नमेंट ने बस आपको एसेट दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट बढ़ रहा है रिकॉग्नाइज कर देंगे बुक्स में, लाइबिलिटी बढ़ रही है रिकॉग्नाइज कर दी। अब क्या होगा, यहाँ पर लाइफ कितनी है, 5 साल है ना, तो हमें डेप्रीसिएशन भी लगाना चाहिए। डेप्रीसिएशन हम लोग कितना लगाएंगे, 100,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ जाएगा, 20,000 पर एनम। ठीक है जी, और जो ग्रांट है, डीआई है, बेसिकली डीआई को हम लोग अमोर्टाइज कितने पे करेंगे, 1 लाख की है, 5 साल उसकी लाइफ है, ये भी 20,000 पर एनम हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, अगर मेरे को क्वेश्चन में पूछ लेते भाई पीएनएल और एसओएफपी में क्या डालोगे, तो पीएनएल में क्या क्या चीजें चली जाएंगी, एक तो जो मैंने ग्रांट रिकॉग्नाइज करी,
कितने की है? 20,000 की। एक तो जो मेरा डेप्रिसिएशन है 20,000 का, नेट इफेक्ट आई नो 0 आ रहा है, बट स्टिल वील शो इट सेपरेटली। नेक्स्ट है मशीन। मशीन कितने की है मेरे पास? 1 लाख की थी, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, कितने की बची? 80,000। और क्या बच रहा है? लाइबिलिटी में डेफर्ड इनकम बचेगा। अब लाइबिलिटी को अगेन मुझे किस किस में स्प्लिट करना पड़ेगा? नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, जिसके अंदर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? अपना जो डीआई वाला अमाउंट है। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी में कितना चला जाएगा? अब हर ईयर में 20,000 रिकॉग्नाइज करूंगी। ठीक है, पहले साल में मैंने 20 रिकॉग्नाइज कर दिया, टोटल कितना था? 1 लाख का डीआई। ठीक है, जिसमें से मैंने 20,000 ईयर 1 में रिकॉग्नाइज कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग 80,000 बचा, जिसमें से अगले साल मैं फिर से 20 रिकॉग्नाइज करूंगी, फिर रिमेनिंग बच जाएगा 60,000। तो जितना आप विद इन 12 मंथ रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो वो कहाँ चला जाता है? करंट लाइबिलिटी में, एंड रिमेनिंग गोज टू योर नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सो व्हाट डिड आई डू ओवर हियर? नॉन करंट लाइबिलिटी में मैंने सिंपली क्या डाल दिया? 60,000 और करंट में 20,000। दिस इज हाउ योर क्वेश्चन, सेम तरीके से हमने करा है, बस एसेट को रिकॉग्नाइज कर दिया इंस्टेड ऑफ कोई बैंक का अमाउंट आपका आया ही। ठीक है, सीधा एसेट आया था, एसेट में डाल। इज दिस ओके टू यू ऑल? Please have a look at the same. If you still have not noted this down, please do. And we are done with this accounting standard. Hi guys, I hope you do like the video, and if you did, please make sure to like, share and subscribe, and share the video as much as possible with your friends who are planning to sit in the upcoming attempt. Thank you. Bye.